Good afternoon. Welcome to IGNOU Bhubaneswar online class organized by Dr. Panigrai and team. After yesterday's discussion, some amount of revisiting what we have discussed yesterday and then proceeding further, we had spoken about orientation visits, essential for providing exposure to students to the field, to their understanding of organizations which are working in the field, to understanding the nature of field visit, the purpose of field visits, the need for understanding the structure of the organization. By engaging with the staff, the professionals and paraprofessionals, student can understand what and how organizations function in the field, who are the clients, beneficiaries, target group, consumers, service users for whom the organizations are working, what are the sources of funding, and what are the possible challenges faced by organizations when working in the field. So, all this, an overview is possible for students through exposure visits, and subsequently, when fieldwork placement is undertaken, the students get an opportunity through internship to understand the why and the how of field work. Why means why are we undertaking internship as part of fieldwork? We need to understand that fieldwork gives an opportunity to students for learning from the organization, for learning from the clients, for learning from the social work colleagues who are working in the organization, for learning from paraprofessionals and community leaders who are engaged in field work. It also gives opportunity to students to gain practice skills. So, a student social worker gets to work alongside professionals and sees their functioning, how they play their roles in the field, how they perform their roles as professionals. So, the first hand experience for the student to understand and address social issues in a practical way. That is why fieldwork is known as learning by doing. And the how of fieldwork placement involves the fact that it is done in partnership with social welfare organizations, social work agencies, under the supervision of a professional fieldwork supervisor. So, it is with the help of the fieldwork supervisor that the student identifies the organization or the community according to the student's learning needs and areas of interest. So, the fieldwork supervisor, we always find, are professionals who are sensitive in addressing the specific needs of the learners, and a permission letter or a request letter is issued by the regional coordinator of the study center, countersigned by the fieldwork supervisor, so that the student can engage with the organization's work in a professional way. Students use social work theory and research findings in their practice and demonstrate a commitment to professional values and ethics while working in the field. Students, supervisors, academic counselors all review the learning agreement made between the student and the agency, and they evaluate and facilitate the learning. So, there are very important components by engaging and having a good rapport with the supervisor, how we can use that supervisory space for learning. In concurrent fieldwork, we had seen the importance of report writing. So, the what part of fieldwork involves that how do we organize and present information? How do we organize and present our observations? How do we organize and reflect on what we have undertaken in the field in a systematic and concise manner? So, as a student social worker, you need to exhibit purposeful observation in your records. Purposeful observation means that not casual observation, but purposeful observation.
You need to maintain an objective approach to the field situation and to evaluate your role as a student social worker. You need to read the fieldwork journal carefully, the program guide carefully. You need to maintain a field diary. You need to maintain field notes every single day of field work. You need to write down your observations as the day progresses. These notes, field notes, and maintaining field diary will enable you to write your journal systematically, professionally, and neatly. So we have to use only one medium of writing, either English or Hindi. And we need to follow the format for report writing, which is mentioned for each activity in the journal. इंडक्शन के लिए क्या फॉर्मेट दिया गया है, ओरिएंटेशन विजिट्स के लिए एक फॉर्मेट दिया गया है, कंकरेंट फील्ड वर्क के लिए एक फॉर्मेट दिया गया है, इंटर्नशिप के लिए दिया गया है. यू नीड टू मेंटेन दैट फॉर्मेट. आईसी के लिए फॉर्मेट दिया गया है, जीसी के लिए फॉर्मेट दिया गया है, वो मेंटेन करना है. उससे आप में प्रोफेशनल स्किल्स और प्रोफेशनल अप्रोच बन पाएगी. सो concurrent visit reports or internship reports should reflect these subheadings: 1. Work done, activities undertaken; 2. Observation; 3. Analysis; 4. Learning; 5. Social work skills learnt and intervention undertaken; 6. Future plan. What is your plan for the next day, for the next week? Are you systematic in understanding the organization and working along with them as part of the organization? Only then you will be able to do this systematically. By just copying from website or from brochure or from pamphlet, it is not going to help in any way. Reports should be based on your work done in the field. So, from this we come to individual conference and its importance. This is individual meetings, which earlier also in MSW 13, 14, 15 you have had with your supervisor. In 16 also, in the internship period also, individual conferences are extremely important. These are organized one to one with your supervisor. They are confidential in nature. It is based on the rapport and the relationship you build with your supervisor. You can approach the supervisor for guidance, for support, as a role model, and the supervisor in turn engages with you with their experience, with their maturity, with their lived realities, and shares their insights based on your fieldwork journey and the issues or challenges which you might be facing in the field. Simultaneously, we need to respect and value the importance of the agency supervisor, the supervisor in the organization who is guiding you on a daily basis and is overseeing your work in the field on a regular basis. It is the agency supervisor who has a hands on approach. They are mostly the head of the organization or head of departments. They are familiar with the staff, with the professionals, with the rules of the organization, with the target group, with the client group, with the target audience, with the programs which the organization is undertaking. They also keep in touch with the fieldwork supervisor. So the bridging of understanding of the fieldwork supervisor and that of the agency supervisor, the fact that you have two senior professionals who are mentoring you, needs to be valued and needs to be reflected on as you move along. So let us not undermine the role of either the fieldwork supervisor or the agency supervisor. We also need to understand what is the agency client relationship when working in the organization. Yesterday, I had mentioned that some of the ways in which you can evaluate, understand, and get an orientation to the agency client relationship is by addressing the following questions. One, what is the first impression of an individual, group, or community, and whether it changed over subsequent sessions? So, if an individual is engaging with the organization, if any group is engaging with the organization, like a migrant workforce group,
or an adolescent group or a youth group or a Mahila Mandal group or a self-help group, what is their initial impression about the organization and its functioning? And by engaging with the organization through you, with you, and with other staff, have they changed their opinion or idea? Are they feeling more confident, comfortable, approachable in engaging with you? Are they more inclined to take advantage of the services being offered by the organization? All these we need to understand. How does the client see the agency and why is it so? Just give me 1 minute. There is one call coming. Aisha, I'll call you back. Huh? Text kar dene. I'm just finishing my online class till 6, then I'll call. Okay. So, what is the agency approach to the client, to this target audience? How do they perceive the client? Do they see them as a poor, vulnerable, marginalized, wo bichare, or do they look at them in such a way that they want to empower them, they encourage them to ask questions, they encourage them to come to the organization and engage with the organization in a proactive manner? So the rationale for providing the services to the clients can be discussed here. Some of the important reasons for the provision of the services to our clients may be religious or philanthropic or for improvement of public relations. How does the agency see the social work professional, including you as a student social worker? Does the agency have an empathetic approach to you? Do they find you a burden कि ये ट्रेनी सोशल वर्क का आ गया, इसको सिखाना पड़ेगा, इसको समझाना पड़ेगा, ये बहुत सवाल पूछने वाला है, ऐसा होने वाला है क्या? So there is going to be a lot of reason why we need to revisit the purpose of the organization where you're going for fieldwork placement. You also need to understand that does the organization where you're going for internship, is it fulfilling the purpose with which it was mandated? जो उनके मिशन स्टेटमेंट में लिखा है, उनके विजन स्टेटमेंट में लिखा है, जो उनके प्रोफाइल में लिखा है, जो उन्होंने ओरिएंटेशन में बताया है, are they matching that? Is it matching your understanding while working with the organization? Is it matching with what is being projected by the organization? How do the beliefs and the traditions and the preconceived notions of the client system influence the perception of the agency? Suppose there are migrant workforce. We have organizations where we used to send our students in Mumbai working with the migrant population. तो जो माइग्रेंट पॉपुलेशन की बिलीव्स हैं या ट्रेडिशंस हैं, उनको क्या ध्यान में रखा जाता है व्हेन ऑर्गेनाइजेशन इज अंडरटेकिंग इट्स प्रोग्राम? कई बार अनजाने में स्टूडेंट सोशल वर्कर इज ऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम on a festival and not many clients or migrant workers are available, and then the supervisor is asking that did you take these into consideration, their cultural beliefs and practices, their festivals while organizing the program? So all these are extremely important for you to understand as a student social worker. Bureaucratic setup क्या है? What are the laws which govern migrant workforce को कौन से कायदे कानून लागू होते हैं? अगर आप किसी ऐसी संस्था के साथ काम कर रहे हो जो स्किल ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करती है, तो क्या आपकी समझ है स्किल ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में? हैव यू डन योर होमवर्क ऑन व्हाट वाज नेशनल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, or what is the skill initiative undertaken by the government machinery, or what is corporate social responsibility, and what organizations implement skill training through corporate social responsible स्पेसेस? ये सब होमवर्क भी करना आवश्यक है आपको। ये नहीं हम कर सकते कि संस्था में गए, संस्था ने हमें 4 काम दिए, हमने कर दिया, आगे पीछे का हमें पता नहीं। Then we are doing incomplete internship. I had just mentioned about individual conference. Then we have to report about the individual conference in our journal. What happened in the individual conference? When was it conducted? Why was it undertaken? Was there any issues which the student had raised, or were there any concerns which the fieldwork supervisor wanted to discuss? What was the dialogue and discussion between the student and the supervisor?
What was the feedback given by the supervisor? What was the reflection undertaken by the student? What is the way forward? ये सभी पॉइंट्स आने चाहिए रिपोर्ट में about individual conference. Group conference also is organized by supervisor. Suppose a particular supervisor has 10 students in 3 different organizations or in 4 different organizations. Sometimes once a month, the supervisor calls for a group conference of all the students. So how are we going to write the report of group conference? Who were the members present? What was the day, date, and time when the group conference was undertaken? What was the purpose of the group conference? What was the issues discussed? What was the response of the group members? Which group members responded? Who remained silent? Was there any conflict or area of disagreement in the group conference? अगर कंसेंसस और बॉन्डिंग हुई तो किस मुद्दों पे हुई? व्हाट वाज द लर्निंग? पेयर लर्निंग क्या हुआ? हम 2 जनों ने अपनी संस्था के बारे में शेयर किया, बाकी 2 जनों ने अपने संस्था में फील्ड वर्क जो हुआ उसका शेयर किया, तो वो पेयर लर्निंग हो गई। एक दूसरे से क्या सीखा? वो सब मुद्दे हमारे रिपोर्ट में आने चाहिए ग्रुप कॉन्फ्रेंस के। अगर हम कई बार स्केची आधा अधूरा मीटिंग के रिपोर्ट लिखते हैं तो दैट इज गोइंग टू नॉट हेल्प इन एनी वे. We need to be systematic in reporting about the group conference and what and how it was undertaken and what and how we gained from that meeting which is organized called group conference. One additional feature which sometimes students tend to overlook is the fieldwork manual. जो गाइडलाइंस दिए गए हैं आपके फील्ड वर्क और इंटर्नशिप के लिए वो पढ़ते नहीं कई बार स्टूडेंट्स. उसमें रूल्स और रेगुलेशंस दिए गए हैं, डूज एंड डोंट्स बताए गए हैं. द गाइडलाइंस फॉर वर्किंग इन द फील्ड, उनका ध्यान क्यों रखना है? हमारा पहनावा, हमारे बोलचाल, हमारी भाषा, हमारा तौर तरीका, दोज आर इंक्लूडेड इन गाइडलाइंस. Understanding the different dimensions of fieldwork are also included in the guidelines. And making an effort to link theory with practice is also an integral part of our learning in the field. Now, what are the assignments or the tasks which are undertaken or given to students as part of this internship program? कल भी मैंने मेंशन किया था, अगर आप कोई केस वर्क या ग्रुप वर्क एक्टिविटी ले रहे हो तो इनिशियल स्टेज में आपने क्या चर्चा की, क्या कार्यक्रम किया, क्या बेस वर्क किया, क्या ग्राउंड वर्क किया, प्लानिंग स्टेज किस तरह से हुई, फिर इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में कैसा रहा. सो सपोज यू हैव बीन आस्क्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन कि आप और एक स्टाफ मेंबर मिल के सैटरडे को इतने बजे एक हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज करोगे. तो इनिशियल स्टेज में आपने क्या तैयारी की, क्या चर्चा की, किसको कांटेक्ट किया, कौन से हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, कौन सा परमिशन लेने के लिए क्या लेटर ड्राफ्ट किया, कैसे परमिशन ली. प्लानिंग स्टेज के साथ वो ओवरलैप भी हो जाएगा इनिशियल स्टेज. सो इनिशियल स्टेज फॉलोड बाय प्लानिंग स्टेज फॉलोड बाय इम्प्लीमेंटेशन स्टेज. फाइनली आपने वो हेल्थ अवेयरनेस कैंप कैसे कंडक्ट किया, किस किस की मदद ली, वो तैयारी जो आपने की वो उसने डिड इट हेल्प यू टू undertake implementation of that program. End of the program, if you are going to evaluate your work and get feedback from your supervisor or agency supervisor or other staff members, then how do you use that feedback for your further learning? These are just illustrative tasks, examples. There could be individual activities which may be undertaken by the student social worker. There could be community related programs which you may be asked to undertake. तो आपकी कम्युनिटी के बारे में क्या समझ है, आप किसको अप्रोच करते हो, कम्युनिटी लीडर के अलावा आप किनको अप्रोच करते हो, कैसे कम्युनिटी के लोगों के साथ रैपो बनाते हो, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स और इश्यूज यू हैव एनकाउंटर्ड इफ यू हैव ऑर्गेनाइज्ड द इवेंट. ये सब आप फील्ड वर्क सुपरवाइजर के साथ डिस्कस करके अपनी सोच, विचार, रिफ्लेक्शन करके अपनी लर्निंग को सिस्टमैटिक रूप में जर्नल में लिखोगे. इसके अलावा वी नीड टू अंडरस्टैंड कि फीडबैक और सजेशंस आपको सिर्फ फील्ड वर्क सुपरवाइजर से नहीं मिलेंगे. फीडबैक आपको अपने कोवर्कर से भी मिल सकते हैं, पेयर्स से भी मिल सकते हैं, साथियों से भी मिल सकते हैं जो दूसरी संस्था में काम करते हैं. जब हम प्रोफेशनल स्पेस में अपना काम
शेयर करते हैं कि ये प्रोग्राम हुआ, मैंने ऐसे किया या वैसे नहीं किया, या मुझे ये तकलीफ आई। तो जब फीडबैक मिलता है कोवर्कर से, स्टाफ से, पैरा प्रोफेशनल से, एजेंसी सुपरवाइजर से, सबसे फीडबैक लेके भी हमको सीखने का मौका मिलता है। वी मे ऑल्सो गेट सजेशंस फ्रॉम कम्युनिटी लीडर्स एंड कम्युनिटी मेंबर्स कि दीदी आपने ये प्रोग्राम तो किया, लेकिन गली के उस तरफ के लोगों को तो आप बुलाना ही भूल गए, या आपने प्रोग्राम तो किया लेकिन उस समय तो मैं दिहाड़ी पे काम करने गई थी तो मैं नहीं आ पाई, या आपने प्रोग्राम तो किया लेकिन उस समय मेरे बच्चों का स्कूल था तो मैं नहीं आ पाई। So there could be other feedback which community leaders or community members may give you, which you may think that you are a professional, you don't need feedback, but you will find, and that is a learning, that कई बार उनका फीडबैक बहुत वैल्यूबल होता है। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट नॉट बीइंग एबल टू अटेंड अ प्रोग्राम because of time constraints or other priorities. It could be that the way you have organized the program, or the way you have approached the community, or the kind of people you have invited to take a session on menstrual health or gender equality or substance abuse or HIV and AIDS, it may not appeal to the community people. कई बार ऐसा होता है कि हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते, वो इतना फॉर्मल हो जाता है कि माला दो, उनका सत्कार करो, इनकी अगुवाई करो, उसी दिया जलाओ, लैंप जलाओ, फूल माला करो, रंगोली बनाओ, कि आधा से ज्यादा वक्त कई बार हम उसी में चला देते हैं और असली प्रोग्राम डाइल्यूट हो जाता है। So the suggestions from our clients, the suggestions from our classmates, the suggestions from our supervisors, the suggestions from our community people are equally important as compared to the suggestions and feedback from agency supervisor and fieldwork supervisor. Now, ग्रुप कॉन्फ्रेंस के बारे में तो मैंने बता दिया है आपको। केस वर्क एंड वर्किंग विद पीपल पे आते हैं, क्योंकि हम भूलना नहीं चाहते हैं दैट केस वर्क, ग्रुप वर्क एंड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन आर द कोर मेथड्स ऑफ सोशल वर्क. These methods are used in all settings and in all situations. Casework has 5 steps we have learnt in the theory: study, assessment, intervention, termination, and evaluation. There could be some overlapping between the study phase and the assessment phase and the intervention phase and the termination phase, and termination phase and the evaluation phase. So, when we use the term study, it implies that the social ways in which the client approaches the caseworker. Now, sometimes the client approaches the caseworker or the professional social worker or you as a student social worker on their own initiative, and sometimes they are referred by others. Sometimes the initiative is undertaken by a superior or a colleague or a teacher or a friend. So you could be referred, they could be referred to you by another institution also. कि स्कूल सेटिंग में आपको कोई स्टूडेंट, आप स्कूल सोशल वर्कर के साथ फील्ड वर्क कर रहे हो, इंटर्नशिप कर रहे हो, और आपको कोई स्टूडेंट क्लास टीचर ने रेफर किया है, लेकिन आफ्टर बीइंग रेफर्ड टू यू or the school social worker, the school social worker might require the student to see a psychiatrist or a therapist. So it's possible that you in turn may need to refer the student elsewhere. It's also possible that you may need to refer the student to a doctor or the student's family to a lawyer for availing of some help in terms of the legal need. So there are many ways in which our clients are referred to us, and how we in turn are going to enable them to seek help in this helping profession. कल मैंने मेंशन किया था कि एक वर्किंग रिलेशनशिप भी हमें एस्टैब्लिश करना है, हम फील्ड में काम कर रहे हैं तो we need to clarify and define our problems. We need to make an assessment of the client's strengths, the goals and the roles of the case worker. हमारी ऑब्जर्वेशंस, हमारी इंटरव्यूइंग स्किल्स और हमारी इंटरवेंशन की कैपेसिटी निर्भर करती है हमारे स्किल्स के ऊपर. So what are the skills which we are required to learn as a professional social worker?
सबसे पहला हमें बताया जाता है कि एम्पैथी की इम्पोर्टेंस। एम्पैथी, वार्मथ, सेंसिटिविटी, जेन्युइननेस, being able to handle our own biases and prejudices, acceptance, जो प्रिंसिपल्स हमें क्लास में सिखाए गए थे, ऑफ बीइंग नॉन जजमेंटल, ऑफ गोइंग विद द पेस ऑफ द क्लाइंट, ऑफ बीइंग सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ द क्लाइंट, ऑफ बीइंग रेजिलिएंट। ये नहीं कि वो रो रहे हैं उनके साथ हम भी रोने लग गए, वो परेशान हो रहे हैं तो हम भी परेशान हो गए। हमें अपने आप को संभालना है। कंट्रोल्ड इमोशनल इन्वायरमेंट भी सिखाया जाता है। ऑल दीज स्किल्स वी लर्न टू प्रैक्टिस वाइल डूइंग आवर इंटर्नशिप। जब हम इंटरव्यू करते हैं अपने क्लाइंट्स को एज पार्ट ऑफ इंटर्नशिप, तो हम इंटरव्यूइंग स्किल्स भी सीखते हैं। और इंटरव्यूइंग स्किल्स अगर हमने सीखे हैं 13 MSW 13 14 फर्स्ट ईयर में, तो हमें ये समझना चाहिए कि उन इंटरव्यूइंग स्किल्स को हम एनहांस कैसे कर सकते हैं, उन इंटरव्यूइंग स्किल्स को हम पॉलिश कैसे कर सकते हैं। सो इंटरव्यूइंग स्किल्स को हम पॉलिश कर सकते हैं बाय असेसिंग ourselves and taking help of fieldwork supervisor to understand कि अगर आप असेसमेंट कर रहे हो क्लाइंट का, तो आपकी असेसमेंट कितनी अप्रोप्रिएट है। अगर आप इंटरवेंशन कर रहे हो किसी सिचुएशन में, तो वो इंटरवेंशन का तौर तरीका प्रोफेशनल है कि नहीं, अप्रोप्रिएट है कि नहीं। फिर इंटरवेंशन का आउटकम को आप इवैल्यूएट कर पा रहे हो कि नहीं। अगर आपने अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, कितने लोगों का भला हुआ, सिर्फ आपने प्रोग्राम करके घर चले गए, पर उसको इवैल्यूएट नहीं कर पाए, वो मैकेनिज्म्स नहीं सीखे। या आपने कोई हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज किया, या आपने कोई आई कैंप ऑर्गेनाइज किया, या आपने कोई जेंडर इक्वालिटी पे वर्कशॉप की, यू शुड बी एबल टू इवैल्यूएट विद द हेल्प ऑफ योर सुपरवाइजर उसकी इम्पैक्ट क्या हुआ लोगों के ऊपर, इम्पैक्ट क्या हुआ, उसकी इफेक्टिवनेस क्या रही, उसका आउटकम क्या हुआ, उसका फॉलो अप क्या करना चाहिए, उसके पहले क्या इस तरह के प्रोग्राम्स किए जाते थे संस्था के साथ, तो उसमें लोगों का क्या रवैया था, क्या अप्रोच थी, किन की मदद ली गई थी पहले संस्था ने, इफ दे आर डूइंग कोलैबोरेटिव वर्क बिटवीन अदर ऑर्गेनाइजेशंस इन द फील्ड। हमारे कुछ संस्थाएं थी जहाँ हम स्टूडेंट सोशल वर्कर को प्लेस करते थे, कॉल्ड डॉक्टर्स फॉर यू। डॉक्टर्स फॉर यू वॉज प्राइमरीली अ हेल्थ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। उसी के पड़ोस में एक और संस्था काम करती है गोवंडी एरिया में, इट इज़ कॉल्ड माइना महिला फाउंडेशन। माइना महिला फाउंडेशन ज़्यादा करके महिलाओं के इश्यूज पर, जेंडर इक्वालिटी पे, सेक्सुअल हेल्थ पे, मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे, कम्युनिटी आउटरीच वर्क पे, कम्युनिटी हेल्थ पे काम करती है। तो हमारा एफर्ट था कि ये दो संस्थाओं में जो जो स्टूडेंट सोशल वर्कर को प्लेस किया गया है, वो कोलैबोरेट करके इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें साल भर में या 2 महीने में, 2 प्रोग्राम एटलीस्ट ऑर्गेनाइज करें, जिसमें दोनों संस्थाओं की स्ट्रेंथ्स को यूज़ करके कम्युनिटी के लोगों का भला हो, कम्युनिटी के लोगों का फ़ायदा हो। तो ये आपके स्किल और इनिशिएटिव पे निर्भर करता है कि आप जिस संस्था में प्लेस्ड हैं उसको कितनी अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। What is the professional nature of the relationship between you and your clients? What is the professional nature of the relationship between you and the staff members in the organization? What is the professional nature of the relationship between you and your co-workers in the field? संस्था आपको क्या सपोर्ट देती है, ये आपके इनिशिएटिव और आपके रैपो पे डिपेंड करता है। कोई हमको थाल में परोस के नहीं देगा। वी हैव टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद द एजेंसी, विद द स्टाफ मेंबर्स, because they are enabling us to undertake field work free of cost. So we need to be appreciative of their time and the energy which they are spending on us when we are doing our internship. इन बातों को ध्यान में रख के we also need to understand कि what are the principles of the profession which we need to revisit
ताकि हम इंटर्नशिप को भरपूर फायदा उठा सके। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, appreciating the uniqueness of each individual in the group or in the community, purposeful expression of feelings, controlled emotional response to clients, acceptance of clients कि वो समस्या लेके आए हैं तो वो जेन्युइनली हमें अप्रोच कर रहे हैं और हमें भी जेन्युइनली उनकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करना है। मेंटेनिंग अ नॉन जजमेंटल एटीट्यूड टुवर्ड्स द क्लाइंट। कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्लाइंट हमारे पास आए with issues related to domestic violence or marital discord or child abuse और adult abuse, और हम कहते हैं कि तुम्हारे जैसे लोगों के साथ तो नॉर्मल है ऐसे होना। दैट इज बीइंग नॉन जजमेंटल, दैट इज बीइंग जजमेंटल। वी आर सपोज टू बी नॉन जजमेंटल। हम इस तरह के वाक्य नहीं बोल सकते। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हमारी सोच और हमारी शब्द, हमारी सोच और हमारे कम्युनिकेशन क्लाइंट के साथ कैसा रहो और क्यों हमें इतने बारीकी से इन चीज़ों पे गौर करना है। तो कई बार हम खुद बायस्ड हो जाते हैं जब हमारे संस्था में कोई क्लाइंट आएंगे with issues related to family discord or with issues related to conflict between siblings or with issues related to property matters, और हम अपने मन में सोचते हैं कि हाँ ये गरीब लोग, ये मार्जिनलाइज्ड लोग, इनके यहाँ तो हमेशा यही चलता रहता है। बट इट इज़ नॉट ट्रू। These kind of problems can emerge in any class or any caste, any class of society. It is not particular to low income group. इस तरह की हमें विचारधारा को भी एड्रेस करना है while undertaking internship। इसीलिए इस बात पे मैं आपको रुक के गौर करने को कह रही हूँ कि maintaining a non-judgmental attitude towards the client and towards their issues, we may need to modify our own attitudes in order to facilitate the client to be able to solve or address his or her problems. Client's right of self-determination needs to be addressed. They have the freedom of making their own choices and decisions. अब यही मामला ले लीजिए, आप कोई मैरिटल डिस्कॉर्ड का हो या सिबलिंग राइवलरी का हो या कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो, तो कई बार क्या होता है, हम कुछ राय देते हैं क्लाइंट्स को और आफ्टर सम टाइम वी forget that the clients have a right to self determination. हार के फैसला उनका है कि वो आपकी राय माने ना माने, आपके दिए हुए मार्ग पे चलें ना चलें। We cannot compel them to take our opinions. We cannot compel them to take action only on what we have suggested to them. Their circumstances may change, their situations may change over time. The conflict which was there between two siblings or between partners, it may get resolved. So we have to give them benefit of doubt. इसलिए right of self determination की बहुत value है. So we need to maintain that right of self determination, the freedom of the clients to make their own choices, to make their own decisions. We can only give them a direction, constructive and positive direction दे सकते हैं समस्या को हल करने का। We also need to maintain confidentiality about our clients. ये नहीं कि वापस गए, घर गए, दोस्तों में बैठे, व्हाट्सएप पे चले तो हम शेयर करने लगे जाने अनजाने में। नो, we have to be careful. Confidentiality needs to be maintained. That information only has to be shared with agency supervisor and fieldwork supervisor, क्योंकि वो आपको गाइड कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान हमें रखना है। We also need to understand as we move along our internship that what is the format for reporting about our internship program. जैसे कंकरेंट फील्ड वर्क का था वैसा ही इंटर्नशिप का फॉर्मेट रहता है। So we need to revisit that format. Date of the field work undertaken, date of internship undertaken, time spent in the organization, activities performed, what were the assigned tasks, what tasks did we undertake,
जो टास्क हम नहीं कर पाए तो वो क्यों नहीं कर पाए, what are our observations related to the organization, related to the client, related to the service delivery which is provided by the organization, what are the social work techniques which we have learned and practiced during internship, and then of course the supervisor will give their comments in the journal. So we need to understand, like concurrent fieldwork, you will be placed in a development project or an agency for fieldwork practica, and during that time MSW 13 you had gained 45 days of experience. Block fieldwork you got 30 days of fieldwork. Internship again you are getting the last leg of the journey as a professional social worker, to learn from the organization, to learn from working in groups, to learn from working in communities, to learn about working with people. Now, even as a group work professional, group worker, you need to practice certain skills as you have been doing as a casework professional, whether they are related to communication, leadership, creativity, or collaboration. We also need to understand that when we speak of observation skills, what are the steps when you are conducting observation? आप ऑब्जर्व क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, क्या लिख रहे हो ऑब्जर्वेशन के बारे में, ये बताना आवश्यक है. बिकॉज कई बार हमारे स्टूडेंट्स फील्ड में जाते हैं, हम उनको बोलते हैं कि आपने क्या ऑब्जर्व किया, तो स्टूडेंट बोलते हैं हमें क्या ऑब्जर्व करना है. ऑब्जर्वेशन मीन्स we need to determine what it is you will be observing, whom you are going to observe, where you are going to observe, when you are going to observe, how will you record the data which you have observed. There is something known as participant observation, there is something known as non participant observation. तो जब कई बार ऐसा होता है, one two co-workers in the field and both of them are observing different things. How does that happen? सोशल रियलिटी एक ही है, लेकिन ऑब्जर्वेशन में फर्क हो जाता है. दैट इज अ स्किल. सो द स्किल ऑफ ऑब्जर्वेशन नीड्स टू बी डेवलप्ड. द स्किल ऑफ इंटरव्यूइंग people needs to be developed. The skill of learning, सीखा क्या आपने फील्ड से, learning from the field needs to be developed. Skill of reflection, दिन भर के बाद जब आप जर्नल लिख रहे हो और रिफ्लेक्ट कर रहे हो कि मैंने क्या किया दिन भर फील्ड में, क्या सीखा, अगर यही दिन दोबारा आता, वुड आई डू थिंग्स डिफरेंटली, मेरी एजेंसी सुपरवाइजर ने मुझे कुछ राय दी, क्या मैं इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ, मेरे को वर्कर ने कुछ सजेशन दी, वॉज इट यूजफुल, वो सब रिफ्लेक्शन में आता है. इट हेल्प्स अस फॉर द नेक्स्ट डे ऑफ फील्ड वर्क. सो रिफ्लेक्शन, ऑब्जर्वेशन, लर्निंग, इंटरव्यूइंग, ये बहुत आवश्यक हैं जब हम फील्ड में काम करते हैं. कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि इंटरव्यूइंग स्किल्स सिर्फ हमें रिसर्च में काम आते हैं, बट द फैक्ट इज दैट हम कई बार संस्थाओं के थ्रू इंटर्नशिप में भी कुछ रिसर्च कंपोनेंट का हिस्सा बन जाते हैं. समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशंस आर अंडरटेकिंग रिसर्च और अंडरटेकिंग सर्वे, तो आप उसका हिस्सा अगर बन गए तो क्या आपको फर्क पता है, व्हाट इज स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, व्हाट इज सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, हाउ विल यू नरेट, हाउ विल यू क्रिएट इंटरव्यू क्वेश्चंस, हाउ विल यू फाइन ट्यून योर क्वेश्चंस, ताकि आप जिसको इंटरव्यू कर रहे हो उनको तकलीफ नहीं हो आपको जवाब देने में. एक फ्लो होना चाहिए, वन क्वेश्चन शुड लीड टू अनदर. ये नहीं कि हम रेपिटेटिव वही क्वेश्चन दोबारा पूछ रहे हैं, वो कहेगा सर आप ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछ चुके हो हमें. तो creating and developing interview questions, fine tuning the questions, scheduling the interviews, analyzing your qualitative interview data, किस थीम पे आपने क्वेश्चंस पूछे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में आपको संस्था ने ये काम दिया है कि आप सर्वे करो या इंटरव्यू लो,
माइग्रेंट वर्कफोर्स के साथ अगर काम कर रहे हैं और संस्था वांट्स टू इवैल्यूएट देयर प्रोग्राम एट द एंड ऑफ द ईयर, ये एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर हो गया, कई बार एंड ऑफ द एनुअल ईयर भी हो जाता है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, दे वांट टू इवैल्यूएट देयर वर्क, तो वो कोई गूगल फॉर्म या शेड्यूल या क्वेश्चनेयर क्रिएट करते हैं, आपसे करवाते भी हैं कि हम इवैल्यूएट करना चाहते हैं, आप हर 10वें घर पे जाके ये कम्युनिटी के हर 10वें घर में जाओ और ये सवालों के जवाब लेके आओ और वो सारा डेटा कोलेक्ट करके हमको रिपोर्ट बना के दो। हाउस होल्ड सर्वे कैसे करोगे? हाउस होल्ड सर्वे का फॉर्मेट आपने देखा है क्या कभी? हाउस होल्ड सर्वे में किस तरह की बातें किस तरीके से पूछी जाती हैं? देयर इज अ स्किल इन आस्किंग क्वेश्चंस, देयर इज अ स्किल इन इंटरव्यूइंग पीपल। 1 मिनट, आई विल जस्ट स्विच ऑन द लाइट, थोड़ा अंधेरा सा लग रहा है। So, जितना आप सजेशंस को इनकॉर्पोरेट कर पाओगे उतना आपका इंटर्नशिप यूजफुल, फ्रूटफुल और प्रोफेशनल तरीके से चलेगा। इन द इंटर्नशिप वी ऑल्सो कंडक्ट फोकस ग्रुप डिस्कशंस। फोकस ग्रुप डिस्कशंस अगर आपने कभी फर्स्ट ईयर में किए हैं तो आपको आइडिया होगा, अगर नहीं किए हैं तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट अ फोकस ग्रुप इज अ प्रोसेस डिजाइन टू गेन इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पीपल। एक एक को इंटरव्यू करने के बजाय आप एक 15 जनों का फोकस ग्रुप डिस्कशन भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बट उसकी एक स्किल है, देयर इज अ स्किल इन्वॉल्व इन अ फोकस ग्रुप। एक मॉडरेटर है हु इज अ प्रोफेशनल सोशल वर्कर हु विल आस्क द इंटरव्यू क्वेश्चंस, और जो रिस्पॉन्सेज, फीलिंग्स, एटीट्यूड, परसेप्शंस पार्टिसिपेंट्स के निकलते हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं, उसमें से रिपोर्ट बनाई जाती है, उसमें से निष्कर्ष निकाला जाता है आफ्टर द फोकस ग्रुप डिस्कशंस। सो जो मॉडरेटर की स्किल है, जो रिकॉर्ड कीपर की स्किल है और जो फोकस ग्रुप कंडक्ट करने का तरीका है वो सीखना भी आवश्यक है। इसलिए ये टर्मिनोलॉजी आपको मैं बताने का प्रयास कर रही हूँ ताकि जब तक आप ये 2 इयर्स कंप्लीट करो, जैसे कल हमको समझ आया कि कई स्टूडेंट्स ने 13-14 भी कंप्लीट नहीं किया था और उन्होंने मैनुअल भी नहीं पढ़ा था और गाइडलाइंस भी नहीं पढ़े थे। तो अगर हमने 13-14 एमएसडब्ल्यू 13-14 तरीके से कंप्लीट नहीं किया, इसलिए मुझे कुछ चीज़ें रिलेट करके बतानी पड़ रही ताकि यू आर एबल टू कंप्लीट दैट एंड देन मूव टू इंटर्नशिप। नाउ ड्यूरिंग फोकस ग्रुप we need to understand that it is a very systematic and professional way of conducting a discussion. The moderator must have skills in understanding groups and in facilitating discussion in groups, and also in analyzing the information and the feedback he or she is getting through the focus group discussion. Sometimes some students find it very difficult to ask questions to a group. वो कहते हैं हम इंडिविजुअली तो बात कर लेंगे, लेकिन ग्रुप के अगर 5 अलग अलग जने 7 तरह की फीडबैक दे रहे हैं और 4 जवाब नहीं दे रहे हैं और 5 साइलेंट हैं या अपने बॉडी लैंग्वेज से कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं, हाउ विल यू पिक इट अप? हाउ विल यू एलिसिट पार्टिसिपेशन फ्रॉम अदर्स? कई कई बार ऐसा होता है कि 2-4 जने ही ज्यादा बोलते रहते हैं। हाउ विल यू mold the discussion in the group so that you can get feedback from others in the group who are quiet? बिकॉज आपके पास लिमिटेड टाइम है, 1.5 घंटा है फोकस ग्रुप डिस्कशन करने का, सारा दिन नहीं बैठे रह सकते आप उनके साथ। तो बाकी के 5 जने बोलेंगे कि सर हम वेट कर रहे थे कि वो 4 जने चुप हों तब हम बोलें, और 1.5 घंटा निकल गया, and that is of no use. Then the purpose is defeated. So it's good if you can understand what considerations we need to keep in mind when conducting focus group discussion. One is to select the size of the group. कई लोग 12 लोग लेते हैं, कई लोग 15 लोग लेते हैं, कई लोग 20 लोग को ज़्यादा समझते हैं. Setting the environment, आप कैसे
सबको एडवांस में इंटीमेट करोगे कि संडे को 11 बजे सुबह कम्युनिटी सेंटर में हम 15 जनों के साथ हमारा फोकस ग्रुप डिस्कशन होगा? हाउ विल यू इंश्योर दैट? व्हाट विल बी योर प्लानिंग फॉर द पार्टिसिपेशन? हाउ विल यू कीप द डिस्कशन फोकस्ड? कई बार होता है हमारा डिस्कशन होना है, फोकस ग्रुप डिस्कशन में ये टॉपिक है जो प्लान किया गया कि हमारे कम्युनिटी के जो बच्चे हैं वो छुट्टियों में कुछ कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ करें। अभी स्कूल ख़त्म हो गया, स्कूल का टाइम ख़त्म हो गया, नया क्लास अभी गया नहीं है, 1 वीक का छुट्टी है या 15 दिन का छुट्टी दिया है स्कूलों ने, और हमारा फोकस ग्रुप डिस्कशन हो रहा है उनके पेरेंट्स के साथ कि हमारे बच्चे कम्युनिटी में छुट्टियों में, 15 दिन की छुट्टियों में कौन सा कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। और वो चर्चा करते करते किसी ने बोला कि सर, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि हमारी जो घर के पीछे की गली है ना, उसमें गंदा पानी बहता है। और सारा डिस्कशन गंदा पानी, हाइजीन, सैनिटेशन, डिजीज पे चला जाता है। So you have to be careful that for what purpose that focus group you organized. How will you bring the group back? Yes, you will discuss health and hygiene and sanitation on another day at another time and address that issue because that is part of the community matter. But for that day, at that time, your focus will have to remain and you will have to bring the group back very politely, very professionally, very systematically. बहुत प्यार से आपको उनको मुद्दे पे लाना होगा, वो भी एक स्किल है। तो वर्किंग विद कम्युनिटीज़ की जब हम बात करते हैं, वर्किंग विद पीपल की बात करते हैं, वर्किंग विद सब ग्रुप्स इन द कम्युनिटी की बात करते हैं, तो हमें अपने आप को याद दिलाना है that we are working with people with diverse backgrounds, we are working with people with different age groups, we are working with people who are from different castes and sexual orientations, we are working with people who have different religious affiliations, we are working with people who have different spiritual affiliations. So ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही हमें इंटर्नशिप करना है। जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले मेंशन कर रही थी कि अगर आप सर्वे के लिए निकले हो, हाउस होल्ड सर्वे की बात है, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट अ सर्वे इज अ स्टैंडर्डाइज्ड मेथड ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सेट ऑफ पीपल। सर्वे और सेंसस में भी फर्क समझना आवश्यक है। ममता और अमित, आप में से कोई बता सकता है सर्वे और सेंसस में फर्क क्या है? सर्वे इज अ स्टैंडर्डाइज्ड मेथड ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सेट ऑफ पीपल, पूरे कम्युनिटी के लोगों से नहीं, सेट ऑफ पीपल। लेकिन जब सारे कम्युनिटी के लोगों को सर्वे करेंगे तो उसको सेंसस कहेंगे। सो द स्टूडेंट सोशल वर्कर मस्ट नो कि जब वो कम्युनिटी में काम कर रहा है, कम्युनिटी का ओर छोर क्या है, कम्युनिटी की रूपरेखा क्या है, कम्युनिटी की हिस्ट्री क्या है, कम्युनिटी की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज क्या हैं, कम्युनिटी में क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कम्युनिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कम्युनिटी में किस तरह के सुविधाएं हैं, एटीएम है क्या, राशन की दुकान है क्या, पोस्ट ऑफिस है क्या, पुलिस स्टेशन का कोई सब ऑफिस है क्या, प्राइमरी स्कूल है क्या, मिडिल स्कूल है क्या, डॉक्टर, प्राइवेट प्रैक्टिशनर, पब्लिक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है क्या। ये सभी चीज़ों की जानकारी लेना और एक कम्युनिटी मैपिंग जिसको कहते हैं, कम्युनिटी का नक्शा बनाना, वो बहुत आवश्यक है। तभी हमारे को फील्ड की समझ आएगी। So the student social worker must understand the population, the people, the work of the organization. ऐसा कोई है कम्युनिटी के लोग जो छूट रहे हैं संस्था के कार्यक्रम से अनजाने में? कई बार ऐसा होता है कि संस्था का ऑफिस जहाँ है
उसके आसपास जो लोग हैं वही ज्यादा करके संस्था के कार्यक्रमों में भाग लेते हैं और बाकी जने जाने अनजाने में छूट जाते हैं। एक सेकेंड। तो छूट जाते हैं तो क्यों छूट जाते हैं ममता? आपको क्या लगता है कि संस्था के कार्यक्रम में क्यों कोई छूट जाता होगा? शताब्दी, अमित कुमार, ममता, आपको क्या लगता है? हेलो मैम, प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है? आपका आवाज बज रहा है, आप चैट में लिखो दोनों, ममता और दोनों का आवाज आ रहा है। क्वेश्चन क्या है? हाँ, अभी आ रहा है ममता, बोलो। कि संस्था जब काम कर रही है और हम स्टूडेंट सोशल वर्क का इंटर्नशिप कर रहे हैं तो क्यों छूट जाएंगे कम्युनिटी के लोग? Many आप times चैट they don't like to say whatever they faced um, so religious in religious context also हाँ, इट कुड बी दे डोंट लाइक टू due से, to इट कुड बी द casteism. स्टूडेंट सोशल वर्कर ने उसका अप्रोच ही नहीं किया। स्टूडेंट सोशल वर्कर डिडंट अप्रोच देम, ये हो सकता है। अच्छा, आप बंद करो, आपका ऑडियो बज रहा है। होना, आई एम हम तो आस्किंग। जाते हैं कम्युनिटी में but they don't want to tell about their problems. Many times they are though they are deprived of the government facilities also, but they don't like to tell us about their problems. They, दैट इज व्हाट आई एम due to आस्किंग। social stigma, many times स्टिग्मा। social stigma plays a vital role also. बट यू एंड मी आर आल्सो women ना, व्हाई शुड दे फील स्टिग्मेटाइज? हमसे बात करने में क्यों स्टिग्मेटाइज करेंगे वो? ये तो बताओ। We all face it, madam. I am also working as a member of CWC. Many times I करेक्ट। will go to various. Many time I would go various communities also करेक्ट। to face like this problem. ओके। आपने कभी फोकस ग्रुप डिस्कशन किया है? फोकस ग्रुप ऑर्गेनाइज किया है अब जीडी होना का आपने या ममता ने? अवेयरनेस मैंने अवेयरनेस कैंपेन में मैं तो मैं गई हूँ और अवेयरनेस कैंपेन में एज ए गेस्ट और बट दे आर नॉट कोऑपरेट अस मेनी टाइम्स ओनली ईटिंग पर्पज और कुछ पाने के लिए वो आते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए इफ दे शुड नॉट प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंस दे माने कौन जी many times they need financial assistance also nothing they are idly requiring only financial assistance. राइट, राइट, So our करेक्ट। committee provided as a government fund released more in Gajapati. So we provided him financial assistance many times. Consider the case. But what will do? हाउ लॉन्ग यू बीन वर्किंग एस सी डब्ल्यू सी? Uh, 1.5 year, ma'am. Okay. Honak, what is your opinion? I'm asking the basic question that when we are working in the field, Hmm. when we are Okay. going for internship, Hmm. when we are working in the field, when we are going for internship, Honak is there, Baby Jan is now joined. We should get some. Amit is there or you are switched off? Amit is only login. हाँ, तो क्या किया जाए? स्किल्स को कैसे सीखा जाए? Where we can become effective professionals? Uh, while we conduct the FGDs and sit with the community people, they have they will be having so much of expectation.
and they will be having so much of questions why do you do all these things, because still there will be some problem which they may be going through. So many times they ask so many questions. Though we have rights, but we don't get all those things from the government facilities, and it is only written on the book on or in the projects, but really it doesn't implemented in that way. They ask and they raise so many questions because they have more expectation, but in reality they don't get and it doesn't go to them also. So what do you feel as a social worker, क्या किया जाए, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? As a social worker, I always feel very sad, and also uh, feel that we should fight for them. Many times, even I have raised question to file in RTI. Whenever people they fight for justice, even while I travel in trains, also sometimes the TT they ask money, and people sometimes they opposite. That time I always go and stand with them. This is injustice. Very Still, good. people, some of them, they uh, cooperate with them. So, in the same thing, in rural areas, if you raise our voice, there will be another party or other group who will be trying to suppress the guy who is speaking and about the justice. So, our system has made such a way that if you are raising voice, there will be more people to suppress you down. बट टेल मी समथिंग, ये मैं दीपिका से भी पूछ रही हूँ, गुलनार से भी पूछ रही हूँ, क्योंकि उन्होंने अभी ज्वाइन किया है, दैट जो अभी होनार बोल रहे हैं, होनार, then when the government machinery itself has started Samadhan portal or PG portal, have you seen these portals to take help of these portals to resolve problems beyond RTI and FIR and PIL? पीजी पोर्टल, समाधान पोर्टल, ये देखा है किसी ने कभी भी? ममता, आपने आपने देखा है? मैम, पोर्टल्स एंड बहुत सारे स्कीम्स तो है और बहुत सारे कुछ भी है, लेकिन इन रियलिटी इट डजंट एक्टिवली आपने वर्क। यूज करके देखा है? नहीं, यूज तो नहीं किया हूँ, लेकिन कुछ मैंने 3 मुद्दों पे यूज करके देखा है 1 ईयर में। 3 मुद्दा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मेरा ट्रांसफर नहीं हो रहा था अकाउंट, बॉम्बे टू दिल्ली। बैंक ऑफ इंडिया में कुछ इशू था, they did not reply to email, phone call, and one more matter related to gratuity, and all 3 issues are being addressed, and I have proof because मैंने login करके किया, I know the dates ना. So before we are suggesting anything to people और हम खुद हताश ना हो जाएं, इसके लिए मैं ये एग्जाम्पल लेके आप लोग से पूछ रही हूँ, आपका एक्सपीरियंस क्या है कि हमें जल्दी से हताश होके, जल्दी से निराश होके, जल्दी से हार नहीं माननी है। ये हो सकता है कि 100 चैलेंजेस आएंगे, 100 दिक्कतें आएंगी, 100 परेशानियां आएंगी। अगर हम खुद हताश हो गए तो हम अपने क्लाइंट्स की मदद नहीं कर पाएंगे और फिर ये प्रोफेशनल कोर्स करना बेकार हो जाएगा। दिस इज माय सजेशन टू ऑल ऑफ यू। दैट इज व्हाई even though it is not in detail in your journal, I am going to discuss when others join tomorrow regarding teamwork, regarding conflict resolution, regarding communication, क्योंकि हम इन चीज़ों को कई बार नज़रअंदाज करते हैं, इन चीज़ों की वैल्यू अंडरमाइन करते हैं। कई बार हम रोल कॉन्फ्लिक्ट जो हमारे खुद के पर्सनल लाइफ में होता है, उसको एग्जाम्पल लेके जब हम फील्ड में जाते हैं तो हम सोचते हैं सब जगह ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं होता है। समस्याएं हल होती हैं, समस्याएं हल करने की काबिलियत हम में है एज अ प्रोफेशनल सोशल वर्कर, एंड वी शुड नॉट अंडरमाइन आवर वैल्यू। दिस इज माय सजेशन टू यू टुडे। अब 4 बजे क्लास शुरू हुई, आप लोग 5 बजे आए। अगर कोई और सिचुएशन होती तो मैं नाराज हो जाती, लेकिन मैंने सीख लिया है
कि नाराज होने से कोई फायदा नहीं हो रहा है, गुस्सा करने से कोई लाभ नहीं हो रहा है। आप लोग जब ज्वाइन करना चाहोगे तभी करोगे। तो अगर हमें एज स्टूडेंट सोशल वर्कर्स टाइम की वैल्यू नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है कि 4 बजे क्लास ज्वाइन करना है, तो फिर हम दूसरों की क्या मदद कर पाएंगे? हम दूसरों की क्या हेल्प कर पाएंगे? हम दूसरों से कैसे एक्सपेक्टेशन रख पाएंगे कि तुम हमारी बात मानो, समस्या का हल करने का प्रयास करो, हमारी सजेशन को मानो? वो क्यों मानेंगे हमारी समस्या, हमारा सजेशंस? इट्स नॉट नेसेसरी. दैट इज व्हाई आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट मेजर एस्पेक्ट कि हमें सेल्फ रिफ्लेक्शन की आवश्यकता है. सेल्फ रिफ्लेक्शन हमें पहले है, फिर हम क्लाइंट को बोलेंगे कि तुम सोचो भाई कि तुमने अपनी जिंदगी में क्या गलत किया, क्या सही किया, क्या तुम टीम वर्क के साथ जीते हो अपने घर परिवार में, क्या तुम्हारी नेचर केयरिंग और शेयरिंग की है, क्या तुम सैक्रिफाइस करने को बहुत बड़ी चीज मानते हो, क्या तुम डिसिप्लिन्ड हो, क्या तुम अपना टाइम मैनेजमेंट करते हो, क्या जो समस्या लेके आप मेरे पास आए हो वो खुद से आप हल कर सकते हो? हाउ टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लाइंट, उसको कैसे बढ़ाना, उसको कैसे मोटिवेट करना, उसके सेल्फ एस्टीम जो लो हो गया उसको कैसे उभारना? इन सब चीज़ों पे काम करने के लिए हमें पहले खुद पे काम करना है. तो जनरली जब हम ऑफलाइन रहते हैं तो वी अंडरटेक सर्टेन एक्टिविटीज wherein I ask the students to write 5 things you like about yourself and 5 things you dislike about yourself. आप लिख सकते हो 5 जने, 5 things you like about yourself and 5 things you dislike. आप लिख सकते हो चैट में? तो लिखो, हम आगे बढ़ेंगे फिर उसी हिसाब से. Can you write 5 things you like about yourself and 5 things you dislike? क्योंकि मैंने चैट में लिखा है क्वेश्चंस जो मुझे पूछने हैं आपको, उसके बेसिस पे आप देख सकते हो वो क्वेश्चंस. चलेगा सर, यही समस्या हो रहा है कि इंटरेस्ट हमारा बना नहीं जाता है. What do you learn about yourself when you do these exercises? अगर आपको टीम में काम करना है तो गुड टीम वर्क के लिए क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है? अगर आपने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया फील्ड में और वो प्रोग्राम उतना अच्छा नहीं हुआ जितना आपका एजेंसी सुपरवाइजर और फील्ड वर्क सुपरवाइजर ने एक्सपेक्ट किया था, और आपसे पूछा क्या हो, व्हाट फैक्टर्स प्रिवेंटेड गुड टीम वर्क, which factors you think are important for improving the working environment in an organization? What is your future plan based on this learning? आप आगे किस तरह से काम करोगे फील्ड में? तो अभी आपका रिस्पांस नहीं आ रहा है तो हम और एक्सरसाइजेज नहीं ले सकते और एक्टिविटीज़ आपको नहीं बता सकते. अभी मैं एक केस स्टडी आपके पोस्ट कर रही हूँ चैट में, क्योंकि आप जवाब नहीं दे रहे हो ना. अब आप ये केस स्टडी पढ़ के मुझे बताओ इसमें से आपको क्या समझ आया. होनक, ममता, आप दोनों को मैं जिम्मेदारी दे रही हूँ, पढ़ो. व्हाट इज डाइवर्सिटी है इस केस स्टडी का नाम, पढ़ के बताओ क्या लिखा है इस केस स्टडी में. अगर ये केस स्टडी आपका फील्ड वर्क सुपरवाइजर आपको देगा तो आप इसको कैसे डील करोगे? पढ़ा जा रहा है आपसे, नहीं पढ़ा जा रहा है? ये लग रहा है सिर्फ इग्नू भुवनेश्वर की स्टाफ का फायदा होने वाला है इस प्रोग्राम से. Which you have said in the chat, that one, ma'am? Yeah, that one. Can you read it? Yes, sure. Very Your good. organization has grown over the past 12 years from a small privately owned company and 80 employees in one location to a large publicly treated corporation and 1,600 employees spread across 25 offices in 3 countries. Most of the acquisitions has occurred through purchasing small companies
As it has grown, the organization has been working to get the support systems in line with new organizational structure that is being developed. Customers, the public, and employees have recently started an Asian man who was born and raised among the mainline suburbs of Philadelphia, PA. He has a master's degree in industrial organization psychology and 5 years of experience in HR after earning his master's degree. An African woman who was born in the city of Rochester, NY, a mid-sized city in upstate New York. She withdrew from high school and 5 years later earned her JD, General Education Development. Tests are a group of four academic subject tests in the United States. A, a Caucasian man whose birthplace is unknown. He was raised by mixed race foster parents in mercy projects in Brooklyn, New York. He has a degree in business management from the City College of New York. He has 10 years of experience and he is currently the manager of human resources at a competitor. An Indian African woman who has just completed her doctoral degree in this month in human resource development. She was raised in a wealthy household and worked as a customer service representative for I think only this much. अब आप बताओ कि जो ऑप्शंस दिए गए हैं कि 4 कैंडिडेट्स हैं, वो 4 कैंडिडेट्स की डिटेल पढ़ के बताओ कौन सा कैंडिडेट सूटेबल है इस जॉब के लिए। डाइवर्सिटी हम डिस्कस कर रहे हैं। आपके पास अगर ये समस्या आती है फील्ड में और उनमें से एक कैंडिडेट आप हो, तो ये 4 कैंडिडेट बताए गए हैं, उनकी प्रोफाइल पढ़ के बताइए कौन सा कैंडिडेट आपके हिसाब से मोस्ट सूटेबल है। आपको आवाज आ रहा है? ममता, दीपिका, गुलनार, किसी को नहीं आ रहा है आवाज? तो फिर आपको खुद करना पड़ेगा ये केस स्टडी। नहीं, मैडम गुड इवनिंग, आवाज आ रही है। हाँ दीपिका, आप अंग्रेजी को हिंदी में या उड़िया में अनुवाद करके वो 4 जनों का प्रोफाइल जो मैंने चैट में लिखा है वो उसको समझ के मुझे पढ़ के बताओ क्या समझ आ रहा है। आपको सिर्फ अनुवाद करके बताना है उसका प्रोफाइल क्या है। 4 व्यक्तियां हैं, 4 कैंडिडेट हैं, 4 लोगों को इंटरव्यू किया जा रहा है एक पोस्ट के लिए। हो ना? एम आई राइट? यस मैम। हाँ, तो दीपिका और ममता पढ़ के बताएंगे वो 4 कैंडिडेट की प्रोफाइल क्या है। तब तक होना आप सोचो आपकी राय क्या है, आप कौन से कैंडिडेट को लोगे और क्यों। क्वेश्चन सबको समझ आ रहा है? होना आप बताइए। आप फील्ड में अगर काम करना चाहते हो, फील्ड से अगर सीखना चाहते हो, तो फील्ड रिलेटेड आपको टास्क जब दिए जा रहे हैं और जब हम फाइनली इस बात पे आएंगे कि आप का इवैल्यूएशन होगा ऑन 3 कंपोनेंट्स, नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड। आप तो किसी में माहिर नहीं निकलोगे तो आप लोग के नंबर कैसे लगेंगे?
जर्नल में। अभी आपने देखा है इवैल्यूएशन क्राइटेरिया इसमें बताया जाता है नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड, देखा है कि नहीं? जर्नल देखा है कि नहीं? कल से हम जर्नल देखने का प्रयास कर रहे हैं। पेज 80 निकालिए आपका जर्नल का। परफॉर्मा तो मैंने कल डिस्कस किया था, आज भी मैंने मेंशन किया है। रिपोर्ट कैसे लिखी जाएंगी इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस की, ग्रुप कॉन्फ्रेंस की, वो भी बता दिया है। आपको कुछ केस स्टडीज देके आपकी राय लेने का प्रयास किया तो अभी फीडबैक नहीं मिला है। आप 100 पेज नंबर पे पहुंच के देखिए कि आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है, आप ये इंटर्नशिप किस तरह से पूरी करने वाले हो। आपने दीपिका MSW 13 और 14 किया है या अभी नहीं किया है? नहीं मैडम, नहीं किया है। शुरू किया है? इसमें स्टार्ट किया है। हाँ, तो थोड़ा बताओ क्या स्टार्ट किया है, क्योंकि ममता सबसे एक एक करके हम पूछेंगे, क्योंकि जब तक आप वो नहीं बता पाओगे आप ये नहीं समझ पाओगे, तो फिर ये बेकार जा रहा है, पानी में जा रहा है सब मेरा सारी वो बातें। मैडम वो जो देना सेल्फ असेसमेंट जो ऑप्शन देते हैं चूज करने के लिए, वो भी कंप्लीट करें। तो आपने जर्नल देखा है कि नहीं देखा है? जर्नल भी नहीं देखा है। कल जो मैंने ग्रुप पे पोस्ट डाले थे 3 वीडियो MSW 13 14 के, वो किसी ने देखे हैं? शताब्दी, बेबी जान? यस मैम, यस मैम, यस मैम। हाँ, तो क्या देखा है वो चैट में लिखो ना, क्या देखा है, क्या समझा है, वो तो बताओ। अगर ऑडियो नहीं ऑन हो रहा है, चैट तो ऑन हो रहा है कि चैट भी नहीं हो रहा है? तो हमारी रुचि सुपरवाइजर की रुचि कैसे बनी रहेगी जब हमारा स्टूडेंट का रुचि चला गया? आप देखिए, इवैल्यूएशन ऑफ फील्ड वर्क के लिए आपकी संस्था की समझ बनानी आवश्यक है। अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग द पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट ग्रुप, किसकी सर्विस, टारगेट पॉपुलेशन क्या है, बेनिफिशियरी कौन है। और अगर आपकी स्किल्स को इवैल्यूएट करने लगा सुपरवाइजर MSW 13 में भी, तो भी आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स, आपकी डेटा कलेक्शन स्किल्स, आपकी एनालाइज करने की स्किल्स वो पहचानी जाएगी। अगर आप चर्चा ही नहीं कर रहे हो तो आप क्या रिसोर्सेज मोबिलाइज करोगे कम्युनिटी में, किसको क्या समझाओगे, कैसे किसी को कन्विंस करोगे कि संस्था के कार्यक्रम में आओ, हमारे प्रोग्राम में भाग लो, हमारी सेवाओं से लाभान्वित हो। प्लानिंग स्किल कैसे होगी, इम्प्लीमेंटेशन स्किल कैसे हो बनेगी, इवैल्यूएशन स्किल कैसे बनेगी। आपकी मोटिवेशन अगर पुअर है तो आप लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए कैसे मोटिवेट करोगे? व्हाट इज योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड ग्रुप्स, कि एडोलेसेंट ग्रुप क्या होता है, यूथ ग्रुप क्या होता है, महिला मंडल क्या होता है। अगर बुजुर्गों का ग्रुप बनाएंगे तो उनके साथ किस तरह से डील करना है। अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप बनेगा तो उसकी क्या आवश्यकताएं हैं। अगर आपको बताया जाएगा कि आपको 2 सेशन लेने हैं जेंडर इक्वालिटी पे या HIV एंड एड्स पे, या इस बात पे कि हमारे ये जो लूना एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स आ रहा है, इससे जो प्रभाव पड़ने वाला है इंसान पे, धरती पे, उससे हम कैसे डील करेंगे। क्या हमें कुछ स्पिरिचुअल होने की आवश्यकता है? क्या हमें मेडिटेट करने की आवश्यकता है? क्या हमें शांत होने की आवश्यकता है? क्या ये सोशल वर्कर का रोल हो सकता है चेंजिंग दौर में? तो ये सब स्किल आप सीख पा रहे हो कि नहीं? फिर आपका एटीट्यूड कैसा है? आप रेगुलर हो, पंक्चुअल हो, कमिटेड हो अपने काम के लिए? आप कितनी इंपॉर्टेंस देते हो कि आपसे कोई सवाल पूछ रहा है सुपरवाइजर, आप जवाब दे रहे हो कि नहीं? आप कितनी इंपॉर्टेंस देते हो कि हम कह रहे हैं कि एक्सेप्टेंस का प्रिंसिपल सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आप
से फीडबैक लेना सुपरवाइजर के लिए भारी पड़ रहा है। तो ये सेल्फ अवेयरनेस, आप एज अ सेल्फ अवेयर पर्सन आप हो कि नहीं, आप अपने बारे में जानते हो कि नहीं कि आप इस तरह से कर रहे हो, और कर रहे हो तो उसका निदान क्या है, कैसे उस समस्या का हल करेंगे हम, या हम बहाने बना के या हमारी परिस्थिति ऐसी है ये बोल के ही निकल जाएंगे। अगर हम ये बोल रहे हैं तो हम अपनी परिस्थिति बदलने का प्रयास कर सकते हैं क्या? अगर हम अपनी परिस्थिति का प्रयास नहीं कर सकते तो हम दूसरों को कैसे राय देंगे कि तुम अपनी परिस्थिति बदलो, तभी तुम्हारी जिंदगी में सफलता आएगी, तभी तुम जिंदगी की समस्याओं का समाधान कर पाओगे। ये हम किस हक से बोलेंगे अपने लोगों को, क्लाइंट्स को? तो ये सब चीजें समझना आपके लिए आवश्यक है, तभी ये सारा चर्चा फायदेमंद हो सकता है। नहीं तो ये जो 200 पेज का जर्नल है इंटर्नशिप का, ये ऐसे खानापूर्ति में चला जाएगा। तो कंकरेंट विजिट है, उसका जो फ्लो है कि पहले दिन से अगले दिन में आपकी रुचि बनी रही क्या फील्ड में जाने की, पहले दिन से दूसरे दिन आपने रुचि ज्यादा दिखाई, आप जब एजेंसी सुपरवाइजर से मिले तो वो खुश हुए आपसे मिलके कि आप फिर से फील्ड में आए हो। तो एक एग्जाम्पल आपके जर्नल में है अबाउट वन संजय कॉलोनी कम्युनिटी है, उसका नाम है संजय कॉलोनी। वो झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी थी पहले, और 15,000 परिवार वहां बसते थे। जो टोटल पॉपुलेशन वहां की बस्ती की 60,000 लोगों की है। ज्यादातर लोग माइग्रेंट्स हैं। दे हैव माइग्रेटेड फ्रॉम वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। ये भी बताया जाता है कि ये कम्युनिटी क्यों सिलेक्ट की गई फील्ड वर्क के लिए, इंटर्नशिप के लिए, क्योंकि वहां सेवा करने का संस्था has adopted that community to serve that community and attend to their needs. So they built contact, they built rapport, they made frequent visits to the community with the student social worker. Because the community was not developed, the organization which was working with the community, they made extra efforts to build the trust of the people. और जो कम्युनिटी की डायनेमिक्स थी, डाइवर्सिटी थी, अलग अलग तरह के लोग अलग अलग प्रदेशों से आए थे, उनको ध्यान में रखते हुए लोगों के साथ बातचीत की गई, लोगों के साथ चर्चाएं बनी रही। कम्युनिटी स्टूडेंट सोशल वर्कर और सुपरवाइजर ने भी विजिट करके उन लोगों को इस तरह से एंगेज किया कि दे स्टार्टेड trusting the organization which was working in the community for them. So how do you build rapport? How do you retain? अगर कोई आपसे डिसएग्री कर रहा है, जैसे जब हम फील्ड में जाते थे एज ए स्कूल सोशल वर्कर, कम्युनिटी थी यहाँ हमारे अर्बन स्लम में नारायणा के पास, तो वहाँ के लोग मुझे बोलते थे बहुत आए सोशल वर्कर मैम, बहुत आए और बहुत गए। अब अगर यही एक वाक्य लेके मैं चलती तो मैं दोबारा नहीं जाती वहां, लेकिन हमने उसको कड़वा सच समझ के पी लिया और जाते रहे, एंगेज करते रहे, जब तक हमारा विश्वास नहीं हुआ उनको, जब तक ट्रस्ट नहीं बिल्ड हुआ। अलग अलग तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए, रोटरी क्लब के थ्रू, स्कूल के थ्रू, स्टूडेंट्स को वीकेंड में ले जाते थे, उनके माँ बाप भी ऑब्जेक्शन रेज करते थे, लेकिन उनको कन्विंस करके हम आफ्टर स्कूल आवर्स कम्युनिटी में ले जाते थे, ताकि वो कम्युनिटी के लोगों के साथ परिचित हो पाए और कम्युनिटी के लोग स्टूडेंट्स के साथ परिचित हो पाए और एक बॉन्ड बने। तो जब हम फील्ड में काम करते हैं, वी आर नॉट ओनली लर्निंग फ्रॉम द कम्युनिटी पीपल, बट वी आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वी आर ऑल्सो बिल्डिंग द ट्रस्ट ऑफ द कम्युनिटी। आज 15 साल बाद भी अगर मैं वापस जाऊं उस कम्युनिटी में, तो वही ट्रस्ट बना हुआ है, बिकॉज वी स्पेंड 10-11 years देयर आफ्टर स्कूल आवर्स। तो आपके पास 10-11 साल नहीं है, आपके पास 30 दिन है या 15 दिन है या 40 दिन है,
कितने दिन है आपके पास? कितने दिन है आपके पास इंटर्नशिप करने के लिए, बताइए? 45 days में। पक्का है? यस। पहले 45 डेज में आपने कुछ रैपो बनाया जो फर्स्ट 45 डेज आपने फील्ड वर्क किया? अभी मैं एक राइट अप भी आपके चैट में डाल रही हूँ, क्योंकि आप लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो ना, तो मेरे को चैट में डालना पड़ रहा है ताकि आप एटलीस्ट पढ़ सको, क्योंकि आपको समझाते समझाते मेरा गला सूख रहा है। लेकिन मुझे नहीं पता आपको रुचि आ रहा है कि नहीं। ऐसे आप बोलते रहोगे कम्युनिटी में जाके और वो लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे, तो आप बोलोगे हमें नहीं पता चल रहा कि वो कम्युनिटी के लोगों को कुछ समझ आया कि नहीं। हम तो गए थे भला करने। जा रहे हो ना तुम भला करने कि नहीं जा रहे हो? चैट में पढ़ो क्या लिखा है मैंने। एंट्री ऑफ द स्टूडेंट सोशल वर्कर इन द कम्युनिटी। पढ़ो, हो ना, काफी पढ़ रहे हो, और तो कोई पढ़ नहीं रहा है। Okay. The student visited the community on her own. She visited different areas in community and met men, women, and children. She went through different lanes, हम्म। inquired about people, and at times introduced herself as a social worker who will be doing some activities for the community members. Thinking that women in the community will welcome her, she approached more women and attempted to initiate discussion with them. However, she received very cold response from them. The students should enter the community as a learner rather than an expert with solution to the community problems or situation. Being aware of the strength and limitations, student needs to adjust herself in a manner whereby she could contribute to improve the situation of the community while learning from the people. Visit the community, walk through different lanes, and get acquainted with the location and area. Observe whatever is happening and interact with a few people. अभी देखो उसका रिफ्लेक्शन लिखा है, ये किसी स्टूडेंट का रिकॉर्डिंग से हमने उठाया है ताकि आप लोग समझ सको कि किस तरह से आपको रिकॉर्डिंग करना है, रिपोर्ट राइटिंग करना है। देखो एक रिफ्लेक्शन का एक पैराग्राफ भी मैंने आपके लिए डाला है, आप पढ़ो वो कैसे रिफ्लेक्ट किया स्टूडेंट ने अपने फील्ड वर्क जर्नी के बारे में। पढ़ो। I feel really overwhelmed and pressured to begin a project during field work. During my visit itself, I decided to promote family planning, health, and then education in the community. However, my interaction with women and issues like family planning, nutrition, and healthcare was very frustrating. Women outrightly rejected me by showing their disinterest. In yet another visit, seeing a school in the community, summing up, entering a community and initial contacts are crucial for creating an environment of acceptance, mutual recognition, and working relations with the community members. At this stage, the student should not forget that she is a learner. Never give introduction or impression of herself as social worker or one who can do the things for them. Should avoid the temptation of giving false hopes, promises, or make tall claims about what she can do for the people. क्या समझा बोलो? ये इस तरह से आप लिख रहे हो अपना रिपोर्ट MSW 13-14 में? हाँ लिखेंगे मैडम, लिखना शुरू नहीं किया, अभी क्लास ले रहा है। नहीं इसमें हाँ, अच्छा लगा, कई बार हमको ऐसा लगता है कि हमें बहुत कुछ मालूम है और हम ऐसा कर दे, वैसा करने से वो लोग दे विल नॉट बी एक्सेप्टिंग अस। इट इज वेरी जेन्युइन। करेक्ट। हम अभी पढ़ो, ये हमको पढ़ो जाना एक होगा कि एज ए लर्नर।
करेक्ट, वेरी गुड। और पढ़ो, देखो क्या लिखा है एडिशनली The, आपके लिए। the supervisor accompanied कंपनी, student in the हाँ, community and formally introduced her to different key persons like leaders, school teachers, Anganwadi workers, and staff members of agency working in the area. She was introduced as a student of social work, and the purpose of her field work is to learn from community life. It was clarified that while learning from the community life, she may she may conduct some activities with cooperation and support of the community members. The students shared her experience that initially the women were cautious, offensive, and curious about the presence in the community. It was very difficult to break the ice and get inside their homes. But once they become friendly, started sharing everything about their personal and family history, also, they wanted to know more and more about me. At this stage, the student discussed questions such as how much should workers reveal about himself, herself. ये very practical, मैम, this is. I करेक्ट, remember one story. मैं जब यस, पहले बार दार्जिलिंग गया था, वेस्ट बंगाल, सिलीगुड़ी, वहाँ के राइट, बहुत सारे चाय बागान की विमेन है। हम जब राइट, वहाँ राइट, मदद करने के लिए पहुंचे, बोले कि ये लोग कहाँ से आ गए, उड़ीसा से, पता नहीं ये चीज हम्म, करेंगे क्या करेंगे। तो वो उसमें कंटिन्यूसली मैं होटल में रह के एक हफ्ता गैप में फिर जाना शुरू कर दिया, तो ट्रस्ट बिल्ट हो गया। उसके बाद यस, यस, स्टार्टेड ट्रस्टिंग मी। वो होना वेरी चाहिए, नाइस। वेरी प्रैक्टिकल। और पढ़ो, देखो 2 पैराग्राफ और लिखा है, आधा घंटा अदर्स, और है। आई एम गिविंग चांस टू अदर्स टू रीड, मैम। हाँ, पर कोई बोल नहीं रहा है, इसलिए कोई बोलो। दीपिका, आपके दोस्त हैं इनमें से, तो बोलो। नहीं, कोई बेबी दोस्त है? जान है, बेबी जान को पढ़ने दीजिए, और बेबी कोई जान भी। कल भी नहीं बोला, आज तो बोलना ही पड़ेगा। बोलो। आप बेबी जान को अलग से फोन करो, क्योंकि मेरे बोलने से तो नहीं कर रहा है वो। सुपरवाइजर तो फेल हो गया। कहाँ है बेबी जान? तो ऑनलाइन जाके छोड़ दिया। आपको ही पढ़ना पड़ेगा। बोलो, 2 इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, सुपरवाइजर का रोल है। शताब्दी है, दीपिका मैम है, गुलनार है, तो मैम तो कुछ नहीं और बोल सब। रही है, मैम का तो नाम भी मैंने बोला। Ma'am, actually my voice is not clear. That's why I नो answered. नो, योर वॉइस इज क्लियर। बोलो, मुझे तुम्हारा आवाज बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मीठा आवाज है। बोलो, पढ़ना ही है उधर से। As per instruction and assignments, the students focus for attention on getting information about the community and complement the same in the form of community profile. Besides observation and listening to different sections in the community, we had formal and informal interaction with pradhans, Anganwadi workers, agency workers, school teachers, doctors, tuition masters, temple priests, shopkeepers, etc. He also gathered information from organizational records and reports. Learning 1. Collection information from various sources and presenting the same in proper manner. 2. Interviewing people, focused discussion, clarifying issues, etc. Third, knowledge about the people and their environment. Fourth, problems and issues are complex, interlinked, and connected. Fifth, prior to organizing programs for the community, should identify their needs. Summing up, collection facts about community is important step for planning and developing a program. The information आगे। gathered help for students to. Yes, ma'am. अभी आपका आवाज Of कट रहा है, तो होना intervention, कोई बोलते हैं। interaction, and information. बोलो, गुलनार या ये दीपिका को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आवाज आपका कट रहा है।
Deepika, are you there? Gulnar, मैडम पढ़िए थोड़ा। मैम यस मैम कौन सा आप शताब्दी को फॉलो नहीं कर रहे थे ना? कहाँ तक पढ़ा शताब्दी ने? the information gathered helps the students to करेक्ट। think of intervention plan. Her observations, impressions, and information received from various systems indicated the need for education for children. She reported, my assessment of the needs and problems with regard to health and education are based on its health and expressed by the community members as well as my own perception about their needs. Thus, C90 decided to work on the project of promotion of education in the area. At this stage, the students discuss issues like how to begin with the intervention, how to find the agents to work on the identified issues. Simply offering information and telling people about the importance of education does not bring about a change. What and how the programs and activities are organized considering their limitations. What can be done to get the community support, cooperation, and participation to work on the project? How to identify and mobilize resources to achieve the plans? आगे कुछ समझ आ रहा है? Yes, ma'am. आगे पढ़ो। द स्टूडेंट हैज बाय नाउ, मतलब ये फील्ड वर्क चल Yes, रहा है, हमने but फील्ड वर्क रिपोर्ट में से ये निकाला है आपके समझ के लिए, आपको समझाने के लिए। ठीक है, आप पढ़ो। द okay. स्टूडेंट हैज बाय The नाउ, student has by now developed excellent uh, report with men, women, youth and children in community. The youth share their interests, needs and problems at the same time, express concern for their community, especially for children. While interacting with youth, she realized that they could play an important role in promotion of education. She reported, during my discussion with youth, one common interest they expressed was learning a few words and sentences to speak in English. At this stage, students discussed matters related to handling the group situation. She especially sought inputs on how to sustain the group members' interest. What can be done to make the program sustainable? Learning, working with a youth group, conducting meetings, facilitating and coordinating program activities, summing up. In community organization, the worker has to initiate and facilitate the process. She has to become an instrument through which people become active participants. आगे क्या Next, लिखा है? the yes, ma'am. हाँ, बोलो आगे क्या लिखा है? The student towards the end of her fieldwork attempted to assess the success of her efforts. Most of the 92 youth volunteers said wonderful experience. Firstly, the youth started conducting activities regularly at their centers. They received positive response from children and their parents. Most of them prepared a list according to the four categories of children in their land. The student mentioned that the success of their effort is difficult to assess, but students were satisfied with their program. तो आपको क्या समझ आया ये सब पढ़ के? बताओ Ma'am, मोनक, yes, आपको पहले दीपिका बताएगी, फिर दूसरे लोग बताएंगे। बोलो ma'am, ये दीपिका। जो हाँ मैम बोलो। वो जो ग्रुप डिस्कशन हो रहे हैं ना प्रोजेक्ट पे वो हम्म डिस्कशन जो कर रहे थे ग्रुप और स्टूडेंट के बीच। हम्म। और स्किल्स, क्या स्किल्स भी तो बताएं कि कम्युनिटी वर्क में क्या क्या स्किल्स हमने सीखने, वो तो किसी ने पढ़ा नहीं अभी तक।
स्किल्स को क्या समझते हो? खाना बनाने का स्किल आता है ना सबको। प्रोफेशनल सोशल वर्कर को क्या स्किल सीखने कम्युनिटी वर्क करने में? Patience, communication with each other. चैट Second में क्या लिखा question, है? how चैट में कुछ चैट में कुछ लिखा है कम्युनिटी वर्क का स्किल्स के बारे में? पढ़ो। कम्युनिटी वर्क की स्किल्स के बारे में लिखा है ना चैट में? नहीं लिखा है? नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन, इवेंट प्लानिंग एंड फंड रेजिंग, वॉलंटियर मैनेजमेंट, प्रोग्राम इवैल्यूएशन, इनमें से कुछ किया आपने 13-14 में? नहीं मैंने नहीं किया है अभी तक। नहीं किया। फिर कैसे आप समझोगे जो मैं समझाने का प्रयास कर रही हूँ? कैसे आप समझोगे कि जब हम कम्युनिटीज के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारी ट्रेडिशनल कम्युनिटीज, ऑफलाइन कम्युनिटीज, स्टूडेंट कम्युनिटी, संस्थाएं जहाँ काम करती हैं वो कम्युनिटीज, और जो कोविड में आई ऑनलाइन कम्युनिटीज, देखी कोई ऑनलाइन कम्युनिटीज आपने? ऑनलाइन कम्युनिटीज में क्या हुआ था पैंडेमिक कोविड के टाइम में? आप लोग ने कुछ काम किया था पैंडेमिक के टाइम में? किसी की मदद की थी? Yes, madam. हाँ, तो वो हाँ, बताओ ना। madam. रिलीफ बांट रहे सोशल थे वर्क किया मैडम, था, रिलीफ बांट रहे थे। उसमें से कुछ। हाँ, तो रिलीफ रिलीफ बांटने में कुछ झगड़े हुए कोवर्कर्स के साथ, संस्थाओं के साथ? समस्याएं समझने में कैसे किया? सिर्फ जाके रिलीफ बांटा? नहीं, हम लोग भी ऑनलाइन में बांटते थे। ऑनलाइन द सेंस लोकल लोग बोलते थे कोटेशन दो ऑनलाइन में, बांटो और फोटो दिखा दो ऑनलाइन में, ऐसे करते थे क्योंकि घर से तो नहीं निकल पाते थे। जो निकल पाते थे उन्होंने क्या रिस्क लिए? जो और मेडिकल जो पैराप्रोफेशन। निकल पाते थे, हम लोग कई बार नए नए टाइम में कोविड के किट्स पहन के जाते थे, लोगों को टच नहीं करते थे, ऐसे सामान रख देते थे, वो लोग उठा के ले जाते थे। Correct. But did it teach us anything? Did the pandemic days teach us anything? Did it help us to understand the importance of bonding, the importance of community, the importance of, जो मैं अभी आप लोगों को समस्या चर्चा करने का प्रयास कर रही हूँ, कुछ समझा? बहुत बहुत सारे कुछ सिखाए मैडम सीखा कि लेकिन हम भूल गए क्या? एक हाँ, एक एक दूसरे से हम लोग जो पहले मिलने जुलने का जो इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, जब करेक्ट। अकेले अकेले हो गए, एक एक फैमिली हो गए, तो एक दूसरे से मिलना या एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी जाना कितना इम्पोर्टेंट है, वो बातों राइट। को महसूस किए हैं। But राइट। before that, we never felt that it is so important to meet each other or going to someone's family. ऐसा राइट। रेस्ट्रिक्शन आ गया कि एक फैमिली में भी एक दूसरे से कोई खांसेगा तो भी डर लगता था, ऐसा हुआ तो अभी तो सिचुएशन। डर नहीं लगता है 3 साल बाद? अभी और नहीं डर लगता है। डर खत्म हो गया। तो अब ये बताओ, डर जब खत्म हो गया, कि जब मैंने कल मेंशन किया था संजय रॉय की बुक इंडिजिनाइजेशन ऑफ सोशल वर्क या विष्णु दास की, तो देखी कि नहीं देखी किसी ने? फील्ड वर्क पे जो किताब हम लोग मेंशन कर रहे थे, किसी ने ये वीडियो कोई देखा? कल तो बहुत बोला था कि हम देखेंगे, हम सुन के आएंगे, हम पढ़ के आएंगे। अभी 15 मिनट रह गए हैं तो मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि सभी तो लेट ही ज्वाइन हो गए। मेरा सवाल समझ आ रहा है सबको? मैंने तो ऑनेस्टली से कि मैं नहीं पढ़ा, नहीं देखा मैडम, क्योंकि मेरा कल शाम को एक क्लास था, मैं क्लास लेने गया, हम्म। तो उसमें मेरा टीचिंग था, तो मैं आई थिंक क्या 6 पढ़ाते o'clock हो? आई वेंट। हाँ, हाँ, क्या पढ़ाते हो आप? क्या पढ़ाते मतलब आई एम फ्रॉम क्रिश्चियन बैकग्राउंड, सो ओके। आई वाज प्रीचिंग देयर ओके। since we are in Passion Week about Good Friday. I यस। preached there, so there ओके। I delayed.
ठीक है, तो अब मैं आपके चैट में डाल रही हूँ, अब किताब का नाम नोट करो। और मंडे को आपका जब भी क्लास होगा तो आप लोगों को थोड़ा बताना होगा। मैं किताब में जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी चैट में डाल रही हूँ, ताकि आप थोड़ा सभी लोग मोटिवेट हो। जो लोग कल बोल रहे थे, वो लड़की कहाँ गई? अंकिता थी, और एक और लड़की थी ना जो बोल रहे थे हम लोग वीडियो भी देखेंगे। जो जो मैंने पोस्ट किया है, जो दीपिका ने भी नहीं देखा, गुलनार ने भी नहीं देखा, बेबी जान ने भी नहीं देखा, तो कैसे हम इनकरेज करें सबको? क्योंकि सबके दूसरे प्रायोरिटीज हैं, लेकिन ये भी आप ही लोगों ने साइन अप किया ना ये कोर्स करने के लिए। ये बताओ, या किसी ने फोर्स किया था आप लोगों को? किसी ने फोर्स किया था क्या? हम्म? किसी ने कंपेल किया था आप लोगों को ये किताब, ये कोर्स करने के लिए? आई डोंट थिंक ना। नहीं नहीं किया मैम। नहीं किया ना, तो फिर इसमें रुचि कैसे आएगा? 2 दिन तो बीत गए, कल और आज। अभी भी मैं किताबों के नाम डाल रही हूँ ताकि नहीं आप लोग कभी पढ़ेंगे मैडम, थोड़ा बिजी थे तो पढ़ लेंगे। पढ़ लोगे ना। जी। सो ये ज़रूर पढ़ना, और बुक के बारे में भी मैं थोड़ा सा लिख के दे रही हूँ ताकि आप लोग को समझ आए दैट दीज आर ऑल बुक्स इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। और इसीलिए इनको पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि जिस बात का 50 साल से या 40 साल से हम झगड़ा चला था कि हम लोग वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते पढ़ाते और काम करते हैं, वो एटलीस्ट इन किताबों के थ्रू हम लोग उस चीज़ को एड्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर एड्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं, और जिनके लिए ये लिखे गए हैं वो हैं आप, अगर आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर हमारा सारा पर्पस डिफीट हो रहा है। तो ये जो बाद में मैंने बुक डाली है, कॉल्ड इंडियन सोशल वर्क, एडिटेड बाय विष्णु मोहन दास, मिथिलेश कुमार, डीपी सिंह एंड सिद्धेश्वर शुक्ला, ये इसमें अलग अलग आर्टिकल्स हैं। 8 decades of professional social work, indigenization of social work curriculum, contemporary challenges to social work education, और इंडिजिनाइजेशन ऑफ सोशल वर्क थ्रू भक्ति एंड योगा, अर्चना कौशिक मैम ने लिखा है। उसके बाद रिड्यूसिंग स्ट्रेस ऑफ कैंसर पेशेंट्स थ्रू विपස්සना, बुद्धिस्ट एक्सपीरियंस, एक मेरा भी आर्टिकल है उसमें शॉर्ट सा, वो भी थोड़ा डाल देते हैं, हम खुद लिख के फिर भूल जाते हैं ना। डालना चाहिए, कोई ना कोई तो कभी पढ़ेगा, किसी का तो भला हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। सो हम पोस्ट में डालते जा रहे हैं, पता नहीं किसी को कुछ भला हो रहा है कि नहीं। आप तो बोल रहे हो आप पढ़ोगे, लेकिन जो बाकी 16 लोग हैं उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में, वो बेकार में ही हम लोग ने ग्रुप बनाया, मुझे ऐसा लग रहा है ना। क्योंकि बिना वजह के हम पोस्ट डाले जा रहे हैं, किसी को देखना नहीं है। हम्म? ऐसा लग रहा है ना। नहीं मैम, हम पढ़ेंगे मैम। यू आर वर्किंग सो हार्ड ठीक है, फॉर अस। और वी उसमें रेस्पेक्ट यू एंड रिगार्ड यू। ओके। उसके बाद विनोद कुमार जी ने लिखा है एक्सप्लोरिंग ओरिएंटल रूट्स ऑफ सोशल वर्क थ्रू जैनिज्म। विनोद कुमार इज वर्किंग विद इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी हेड ऑफिस इन, सो ये वाला आर्टिकल जो इनका लिखा हुआ है ना, इनकी सोच, इनकी विचार, मैं इसीलिए पैराग्राफ एटलीस्ट एब्स्ट्रैक्ट का आपको भेज रही हूँ ताकि आप लोगों का कुछ तो हो जाना चाहिए भला। सो आई डोंट नो मंडे यू आर गोइंग टू read anything and come, or you are going to see the journal or not. And एक विष्णु मोहन दास का सोशल वर्क इन इंडिया, इंडिजिनस अप्रोचेज एंड मॉडल्स करके भी है। अभी मैं देखती हूँ अगर वो डाउनलोड होता है तो वो भी डाल देती हूँ, बिकॉज बाद में मैं भी बिजी हो जाती हूँ ना। ऐसा नहीं है कि आप लोग ही बिजी हो जाते हो, मेरा भी दूसरा काम रहता है।
और इसके लिए हम तैयारी करके आप लोग को इंटरेस्ट लेके वो करते हैं, पढ़ाते हैं। लेकिन अगर वो इंटरेस्ट बरकरार नहीं रहता है तो फिर आप में से किसी का था ना मेरे पास मेल आईडी, तो मैं मेल पे ही भेज देती हूँ, बिकॉज सब कुछ ये चैट में नहीं डाल सकते। सोशल वर्क इन इंडिया, इंडिजिनस अप्रोचेस। पिछली बार जब हमने ग्रुप बनाया था तो आई थिंक एक आध मेरे पास ये रहेगा। एक ईमेल आईडी डाल दो, आप 2-3 ईमेल आईडी डालो इसमें आपके चैट में, तो मैं अभी आपको भेज सकती हूँ। वो बहुत रेलेवेंट आर्टिकल्स हैं हमारे इंडियन प्रोफेशनल्स के, जिन्होंने इतने जो ये इंडिजनाइजेशन का प्रोसेस चला, ये आसान नहीं था। देयर वाज ऑपोजिशन फ्रॉम पीपल हु फॉलोड द वेस्टर्न मॉडल, सो वी नीड टू, दैट्स व्हाई आल्सो अप्रिशिएट दीज पीपल कि उन्होंने सभी स्ट्रगल के बावजूद ये किताबें लिखी, निकाली और पब्लिश करवाई, करी और आप लोगों के लिए प्रोवाइड की। और अगर आपका जो भी प्राइमरी काम है उसके बावजूद अगर आप ये कोर्स कर रहे हो तो ये आवश्यक है कि आप उसके लिए टाइम निकालो, नहीं तो फिर इट विल डिफीट इट्स पर्पस एंड देन देयर इज नो पॉइंट। आपने जर्नल भी डाउनलोड नहीं किया है और मैं आपको सब ज्ञान बांटे जा रही हूँ फॉर नो रीजन एट ऑल। ये विनोद कुमार का आ गया है। 16 लोग हैं ना हमारे ग्रुप में, लेकिन 16 में से तो 4 आए, आज के 5 आए। आरटीआई कैसे फाइल करते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कैसे फाइल करते हैं, ये आपने कभी इसके ऊपर विचार किया है? फील्ड वर्क में तो आप लोग ने अभी शुरू किया ना, आप कह रहे हो 13। शताब्दी, आपने 13-14 दोनों कर लिया है? नहीं मैम, अब 13 या 14 क्या कर रहे हो आप? और दीपिका आपने? 13। गुलनार मेरा चल रहा है क्या चल रहा है? 13। 13। और गुलनार का? गुलनार तो ऑडियो ऑन करके चला गया खाना खाने बाजार, और बेबी जान भी यही किया है, छोड़ के चले गए हैं। नहीं मैम, नहीं हुई अभी, तो सुबह आपका कुछ किया है फीडबैक अभी है? अभी। अच्छा। तो अभी बताइए, कुछ फीडबैक दीजिए, आज का आपको क्या समझ आया कल और आज से? आज तो लेट क्लास हो ज्वाइन किया ना मैडम, तो समझ में नहीं आया। एक्चुअली क्या है ना, पता नहीं था कि एक ही निक में हो रहा है, तो हम 3-3:30 बजे से वेट कर रहे थे, लेकिन कुछ निक नहीं आया। तो जब हम देखे तो लिंक आपका तो मैसेज वही था। है, पता लिंक तो नहीं था वही है जो मैडम, कल था। इतना अंदाजा अरे नहीं था ना, देवा, तो जब इसलिए सर लेट ने हो गया। आपको इंटीमेशन दिया है कि 4 से 6 बजे क्लास कल था, तो आज भी आपका, तो आपको मालूम है पैटर्न क्या है। नहीं मैम, कल भी मेरा नंबर पे कोई कोई नोटिस नहीं आया, यानी कोई भी लिंक नहीं आया था। मैं दूसरों से लेके आई, कल भी किसी और एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा था, तो मैं वहां से लेके आई, तो ज्वाइन किया था। और आज तो ग्रुप में मैसेज डाली तो होनो भाई ने वो लिंक शेयर की, तो मैंने ज्वाइन किया। मेरा नंबर पे नहीं आ रहा है। तो इतने दिन से आप कैसे क्लास अटेंड कर रहे थे बिना नंबर के और अ, बिना लिंक? नहीं, वो जो ममता सतपथी थी ना, वो भेज रही थी कभी कभी, और मैंने तो क्लास भी अटेंड नहीं किया था आई थिंक, ऐसे ही हम बुक बेकार ही पढ़ रही पढ़ा रहे थी। हैं, कोई क्लास अटेंड नहीं कर रहा है, हम तो ऐसे ही पढ़ाए जा रहे हैं, इसका मतलब हाँ, यही है तो ना। थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है मेरा। आई थिंक मेरा एक दूसरा नंबर था ना, वही पे शायद जा रहा होगा, मैम इसलिए एटलीस्ट मैं अच्छा है, नहीं पा आपका रही हूँ। आपके क्लासेस में 5-7 जन रहते, नहीं तो
कुछ कुछ क्लास में क्लासरूम भुवनेश्वर 2 और मैं रहता हूँ और कोई एक दिन ऐसे रहते हैं। अच्छा वो ग्रुप बनाए करके इतने लोग हैं अभी। तो करुणा नारंग मैम की क्लास में कितने लोग अटेंड किए थे? वो मेरी कलीग थी बहुत वो साल उस पहले। एक या दो लोग थे उसमें। एक बार तो अकेला मैं था और हम्म। भुवनेश्वर वाले ये जो क्लासरूम 2 भुवनेश्वर वाले शायद सत्य साहब ज्वाइन किए थे और एक बार शायद शताब्दी थी वो। तो मतलब कि बेकार ही इग्नू इतनी मेहनत कर रहा है ना, यही बताने का प्रयास कर रहे हो ना आप लोग? नहीं मैडम, एक्चुअली दे आर नॉट कम्युनिकेटिंग प्रॉपर वे and they supposed to make a WhatsApp group at least. Last year अरे लेकिन अब शेड्यूल जो मुझे आया है वही शेड्यूल आपको गया है। वो आया है मैडम, फिर भी sometimes we don't know each other and without knowing now see somebody posted in the group the class is going on, please join. Then I also joined. Even you can't believe I secured 70 or 80% like the last year. I never ever attended a single class also. Sirf I read that one book and I scored the mark. But that is not valued, I think. Though I am involved in the social work, but the way you teaches us this year, I learned so many things. Last year simply I passed. That's all. Only for नहीं, getting the. पास होने के लिए आप लोग को प्रोफेशनल सोशल वर्कर नहीं बना रहे हैं ना हम, दैट इज ट्रू। हम्म हाँ। वही कह रहा हूँ ना, मतलब पिछले साल ऐसा नहीं हुआ। हम तो ढूंढते ढूंढते गाइड को ढूंढे, फिर नहीं मिले तो क्या करेंगे, पढ़ के तो पास होना ही है, जैसा भी करके कर दिया और क्या मैम। हम्म। तो करुणा मैडम नारंग मैम ने क्या क्लासेस लिया था आपका? सोशल वर्क विद ग्रुप्स लिया था। हाँ वो लिए थी मैम। और और कौन सा? जर्नल और और ये लिखना ये सारे वो बता रहे थे। क्या लिखना? वो जो कम्युनिटी और जर्नल लिखने के जर्नल। बारे में पढ़ा, वो ब्रीफली कुछ बताएगा। तो मेरा फीडबैक ये मत देना कुछ बताई मैं, इसलिए मैं डिटेल में बता रही है हूँ, आपका डिटेल में चैट में लिख रही हूँ, तो डिटेल में व्हाट्सएप में डाल रही हूँ। नो नो आपका तो एक्सलेंट है मैम, क्योंकि सारे नोट्स आप देते हैं, लिंक्स देते हैं। रियली आई अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क द वे तो आप यू बाकियों ट्राई। को भी बोलना, मंडे ट्यूसडे 2 ही दिन रह गए हैं। उस कल तो छुट्टी है, सैटरडे संडे तो मैं इग्नू जामिया में वीकेंड क्लास में हूँ। मंडे ट्यूसडे ही रह गया है, उसको कंप्लीट करके आप भी हमें थैंक यू बोलो, हम भी आपको फिर थैंक यू बोलेंगे। नहीं, आप हमको थैंक यू नहीं बोलेंगे, हम आपको थैंक यू बोलेंगे। मैं आपको तभी थैंक यू बोलूंगी जब आप लोग ये जो वीडियो और जो लिंक्स हैं उसको पढ़ के समझ के उसको अपने प्रोफेशनल स्पेस में यूज कर पाओगे, तभी मैं आपको थैंक यू बोलूँगी। Sure, मैम। ठीक है, तो अभी हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद के कि आपके पास लंबा वीकेंड है, आप पढ़ोगे जो जो चीज़ें मैंने व्हाट्सएप पे भी डाली हैं, चैट में भी डाली हैं, और जो मैंने लिंक्स भी भेजे हैं, और चैट में इसलिए कि स्टडी भी लिखी है कि आप कॉपी कर सकते हो, यू कैन रीड इट अगेन, इसलिए चैट में डाला है, इसलिए नहीं डाला है। कई लोग एकदम से प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, पीपल नीड टाइम, so that is why I write in the chat that you can copy it in your word file, you can copy it in your laptop, you can make some notes while you're taking the class, and you can process it in your own time. Okay, ओके मैम, थैंक यू वेरी thank मच। you very much. Thanks to Panigrahi, Dr. Panigrahi and Ignu Bhubaneswar. Thanks to all the students who have participated, and see Thank you, you. ma'am. Please read up what we थैंक यू मैम। Yes, thank you so much. मैं तो बोलते जा रहा था यार। भैया रिटर्निंग का अगर हम ब्रेक जर्नी करेंगे ना, तो मतलब दूसरा फ्लाइट पकड़ेंगे यहाँ से दिल्ली से, तो कम हो जाएगा थोड़ा प्राइस, 16,000 में हो जाएगा, तो 20,000 लगेगा।